नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खबरें आजकल में। मैं हूं अक्षय और मैं हूं अंजलि। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज की सबसे पहली खबर है श्रम विभाग की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई, जो कि बताती है कि भारत में बेरोजगारी की दर 3.8% है। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज किया गया है गुजरात में, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 1% का। तो गुजरात, जो कि एक मजबूत प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, एक और सफलता अर्जित करी है गुजरात ने। See, Anjali, Gujarat has registered an unemployment rate of much less than the national average of 3.8%. The unemployment rate in Gujarat stands at 1%, which has also made Gujarat to be on the top on the list of unemployment rate in terms of being the lowest unemployment rate. Meanwhile, Chhattisgarh has come a close second with 1.2% of unemployment rates. Meanwhile, if we talk about some other states, Maharashtra has registered an unemployment rate of 2.8%. Meanwhile, Delhi has an unemployment rate of 4.8%. जी, तो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे जो बड़े प्रदेश हैं, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। और अगर वहीं हम देखें गुजरात या छत्तीसगढ़, इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये काफी ऊपर हैं बड़े शहरों से। Meanwhile, giving a reaction to this report, Narendra Modi was quick to tweet, "Delighted Gujarat has the least unemployment rate amongst all the states in the country and the national average." Also, what needs to be understood is after 91, when the liberalization, privatization, globalization occurred, in the federal structure, states also had some kind of a role to play in the form of having economic prospects in the state. So one can say that while in the entire nation, at the level of the center, employment rate is at 3.8%, at the level of states, and some states due to their efficient planning, efficient leadership, have ensured that at the level of states the unemployment rates remain stable. For example, Gujarat and Chhattisgarh, they have fought the odds. Even in the atmosphere of economic crisis, the employment rate in Gujarat and Chhattisgarh is high, and unemployment rate in Chhattisgarh and Gujarat is quite low. और अक्षय, आज की अगली खबर गृह मंत्री पी चिदम्बरम की कल जो एक स्टेटमेंट आई थी कि पानी पर 15 रुपए और आइसक्रीम पर 20 रुपए खर्च करने वाले मध्यम वर्गीय जब गेहूं और चावल पर 1 रुपए बढ़ते हैं तो इतना हो हल्ला क्यों मचाते हैं। जिस स्टेटमेंट पर काफी उनकी आलोचना की गई, उसके बाद अब वो सफाई में सामने उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था जैसा कि मीडिया में उसे पेश किया गया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है और ना ही मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। तो गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री की ओर से सफाई पेश करते हुए कहा है कि ऊंची कीमत और पानी की बोतल, आइसक्रीम एक संदर्भ में कहा गया वाक्य था, इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं था। So basically, अंजलि क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, वो मीडिया की सूझबूझ और समझ पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मेरी बात को समझते नहीं है। Meanwhile, रविशंकर प्रसाद, the chief spokesperson of Bharatiya Janata Party, gave a strong reaction to the statement of Chidambaram yesterday. In a press conference, Ravishankar Prasad told that this government was a heartless government which is rubbing salt in the wounds of the public. आम आदमी के नाम पर चुनी हुई सरकार उन आम आदमी के जख्मों पर ही नमक छिड़क रही है, ऐसा कहना है रविशंकर प्रसाद जी का। उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उन्होंने शीला दीक्षित का नाम लिया जब उन्होंने कहा था कि सौम्या मर्डर केस के बाद वुमेन जर्नलिस्ट को या वुमेन वर्कर्स को कहा था कि रात में काम करना ही छोड़ देना चाहिए। She exactly said that women should not be adventurous. Okay, moving on, some ministers in the UPA government had also said some time ago that because Indians have started to eat much more, that's why inflation is on a rise. He also questioned the silence of Sonia Gandhi, who is also the chairperson of UPA government. He asked that why is Sonia Gandhi maintaining a conspicuous silence when something is happening at a level it should not happen. बिल्कुल अक्षय, सोनिया गांधी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन उनकी सरकार के जो मंत्री हैं वो एक के बाद एक इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते जा रहे हैं। सिर्फ पी चिदम्बरम पहले ऐसे नहीं है जिन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी करी है। उससे पहले शीला दीक्षित ऐसी बात बोल चुकी हैं जब उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई थी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है तो हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए तो क्या हुआ। अगर बात करें शरद पवार की, महंगाई बढ़ने के बाद चीनी के दाम बढ़े थे तो उन्होंने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था
चीनी ना खाने से किसी की मौत नहीं हुई है, तो अगर आप चीनी कम खाएंगे तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। तो इतने बड़े पॉलिटिशियंस, इतने बड़े नेता, और आप देश को संभाल रहे हैं और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं आम जनता को लेकर। ऐसा लगता है कि ये जो नेता हैं इनमें संवेदनशीलता जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि गुम होती जा रही है। Moving on, the race for Vice President has also started now, with the Congress hinting for a second term for Mr. Hamid Ansari. However, a formal meeting for UPA would be convened on July 14th. However, Mamata Banerjee seems to be opposing the candidature of Hamid Ansari, as she has come up with two new names in the form of Gopal Gandhi and Krishna Bose. However, BJP may also contest the Vice President race, as in a press conference yesterday, Ravi Shankar Prasad told reporters that we can definitely contest. Why should we give a walkover to Congress? But the strategy is yet to be finalized. So nothing final from the side of BJP as yet. However, as the reports suggest, the BJP may go on to contest the Vice President elections also. जी हाँ, तो राष्ट्रपति पद के दावेदारों के नाम अब जब सामने आ चुके हैं, अब दौड़ शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के दावेदारों की। इसमें हामिद अंसारी का नाम उनके दूसरे कार्यकाल को लेकर आगे बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। कई सारे अखबारों ने भी इसे रिपोर्ट करा है, जैसा कि दैनिक जागरण ने लिखा है हामिद अंसारी पर ही दांव लगाएगी कांग्रेस, और वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अंसारी पर यूपीए मांगे ममता। ममता बैनर्जी का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है यूपीए की। उन्होंने उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को तो अपना सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन शायद हामिद अंसारी के नाम पर मुहर लगा दें। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसा कि आपने अभी बताया अक्षय, कि ममता बैनर्जी ने अपनी तरफ से दो अलग नाम दिए हैं, अलग नामों का सुझाव किया है। जो गांधी परिवार से गोपाल गांधी हैं, जो महात्मा गांधी जी के परिवार से उनके परपौत्र हैं जी, और साथ ही सुभाष चंद्र बोस के परिवार से कृष्णा बोस। तो इन दोनों नामों का सुझाव किया है ममता बनर्जी के द्वारा जी। हालांकि अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है कि आखिर क्या डिसीजन लिया जाएगा ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। Moving on, in another news focused around 2G scam, the Enforcement Directorate has grilled Raja on licenses and beneficiaries. Former Telecom Minister A. Raja appeared before the Enforcement Directorate on Tuesday, the first time that the agency questioned the prime accused in the 2G spectrum scam. The Joint Parliamentary Committee had criticized the slow-paced investigation from the side of Enforcement Directorate, after which the Enforcement Directorate came into action and decided to grill A. Raja on 2G scam. जैसा कि कल रिपोर्ट्स आई थी, सिद्धार्थ बेहुरा ने जेपीसी के समक्ष ए राजा पर ही इस पूरे घोटाले का ठीकरा फोड़ा था। उन्होंने यही कहा था कि उन्हें खुद ये महसूस हुआ था कि कुछ गलत हो रहा है, जिसको उन्होंने ए राजा को रिपोर्ट करा था। हालांकि उसके बाद ए राजा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंजलि, सिर्फ ए राजा पर ही नहीं, पीएमओ पर भी ठीकरा फोड़ा है प्रधानमंत्री कार्यालय को भी बेहुरा ने। उन्होंने कहा था पुलोक चैटर्जी जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको भी इस पूरे केस के बारे में पूर्ण जानकारी थी। And Pulok Chatterjee had in fact told Bahura that everything is stable with regards to 2G spectrum allocation. जी। और आज की अगली खबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव की एक प्रेस रिलीज से जुड़ी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी का जो हाल हुआ है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा है that Shri Manmohan Singh, for whom people had huge expectations for his celebrated expertise on economic affairs, has proved the most incompetent in handling the economy of the country. तो उन्होंने मनमोहन सिंह से ये अपील करी है कि वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार उन्होंने अब संभाल लिया है उसको वो छोड़ दें, क्योंकि देश की इकोनॉमी की हालत पहले ही बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, और जाते जाते एक दुखद सूचना। आज सुबह 7:30 बजे लंबी बीमारी के चलते रुस्तमे हिंद दारा सिंह का निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और हार्ट अटैक के कारण आज सुबह उनकी मौत हो गई। We offer a heartfelt condolences to Mr. Dara Singh and we hope that his soul rests in peace. तो इसी बात के साथ हम अपने आज के अंक की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी खबरें आजकल के एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।